From Professor Neerja. She is also from the field of English literature. So we have the literature people associated with sociology, and today we are here to kick off the 1 billion rising campaign, which is a global movement, and this is in association with Sanj Jagori, an NGO which has started this, and the 1 billion rising campaign is a global movement. So you should be privileged and happy that you are part of a global movement which was started way back in 2012, and it is gradually picking up momentum everywhere. And we are proud to be part of this movement because henceforth we are going to be signing a memorandum of understanding with the Sanj Jagori, the NGO. And the activities are going to be continuous over the next session. This session, since we are close to the examinations, we are conducting the mid-semester tests, so we thought we would just introduce you all to this movement and whatever we can do to empower the women and the girls in at the same time the boys, the young boys of our college, since we have a co-educational college, it is a bigger honor for us that we should be joining this movement, because without the men and the boys, this cannot be successful. Women cannot get their due regard and respect in society unless the young minds, all the men, join in this movement, because we are a patriarchal society. However educated we are, our mindset remains patriarchal. Whether it is the women or the men, it is patriarchy that rules us, and we have to bring a change in that. All the injustice, all the violence, all the inequality that is being shown towards women, we have to erase that from this world. So let us join hands, and I congratulate the postgraduate department of sociology along with the institution innovation cell of our college. They have taken this initiative, and I was talking to Jyoti Seth ma'am. She has such wonderful ideas which will be spreading awareness among the young generation, not just within the college but going beyond the walls and going into the society of Chandigarh, maybe beyond Chandigarh, the villages that we have adopted. अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल जो है माइक रख ले, पास ऑन करती हूँ। आप सबसे पकड़ के रख ले, क्या आप जवाब देंगे? माइक रख ले अपने पास, नहीं ले ले। आपके कॉलेज के आसपास कौन सी around 5 kilometers to college, so आपके कॉलेज के आसपास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में कौन सी स्पेसेस हैं जो सेफ नहीं है आपको लगता है? for both For both boys and girls. ये क्वेश्चन बॉयज के लिए भी है। आप कहाँ आंसर फील करते हो ये आपको बताना है, क्योंकि ये सर्वे सिर्फ लड़कियों के लिए था ना, so the questions are pertinent to girls only. But here we have boys and In girls. college campus, you can say कि which places you are facing. Yes, it is not safe. Outside not college campus, campus. not college campus, Okay. outside the college 5 campus. kilometers around your college, which place घर जाते हुए बस पकड़ते हो, रिक्शा लेते हो, थोड़ा दूर तक वॉक करके जाते हो, साथ ही मार्केट से कुछ लेते हो, वहां पर तक पहुंचने के लिए या और थोड़ा आगे जाते हो, कितनी कौन सी एरिया ऐसा कश्ती आपको लगता है कि वहां से नहीं होके जाना चाहते? यू हैव टू टर्न एंड टेक सम अदर वे टू रीच दैट प्लेस। ऐसा कुछ है, कोई रास्ते में ऐसा जगह आती है जहाँ पर से बॉयज कॉलेज के बाहर ये वाली सड़क जो है अंदर वाली करेक्शनल इंस्टीट्यूट वाली यहाँ पे पार्क है, बटरफ्लाई पार्क लगता है कॉलेज के बैक साइड आप अकेले क्या बटरफ्लाई पार्क वाली अकेले क्या बटरफ्लाई जो कि हमारे स्टूडेंट्स वैसे आते हैं उस साइड से, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई सिंगल गुजर रहा है, अजीब चल रहा है वहाँ पे काफी अनकंफर्टेबल।
तो मैं छोड़ दैट हैपेंस। इनकी टाइम में ना काफी सुनसान सा लगता है वहाँ पे, जैसे बच्चे बस से उतरते हैं फिर उधर से आना पड़ता है, तो काफी इवनिंग के टाइम जैसे लेक्चर्स होते हैं, फिर जाना होता है, जैसे 2 o'clock हो गया, 3 o'clock हो गया, उस टाइम बस स्टॉप कहाँ पे है? तो दोपहर का टाइम हुआ, इस वक्त भी आपको लगता है कि सेफ नहीं है, आप अकेले जाना चाहोगे उस एरिया से? नहीं। सो यू वुड वांट कि साथ में कोई फ्रेंड हो जिससे आपको थोड़ा तसल्ली हो जाए, तो मैं अकेली नहीं हूँ। एनीवन एल्स? क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे आप सबके साथ चर्चा करने के बाद पुलिस के साथ भी और लोगों से चर्चा करें, ताकि आपके लिए और आप भी सुझाव दें हम क्या करें। तो हम मैं बोलूँ कोई चीज़ हाईलाइट इसमें कि जैसे लोग जाते हैं, मैंने खुद ने नोट किया है कि अगर खासकर लड़कियां पीछे से जा रही है तो लड़के से घूम रहे होते हैं अक्सर गाड़ियों पे, तो वहाँ के बोलते हैं चलो छोड़ देते हैं, या फिर मैं देखते हैं कुछ इस तरीके से कि उनकी टेंशन होती है कि चलो आओ, मतलब हम ड्रॉप कर देते हैं। फॉल बजाते हैं या गाना बहुत तो जब वो लड़के कहते हैं कि हम छोड़ देते हैं आपको, तो लड़की उस वक्त अनसेफ क्यों फील करती है? लेट मी पुट रिवर्स द क्वेश्चन। अगर एक लड़का जा रहा है सड़क पर और एक लेडी जो हमारे पास सामान वगैरह कोई चुराना, तो हमारा मतलब कोई हमारे लूट ना ले, हमारे से पैसे ना ले, ये लड़की को क्या लगेगा जब कोई लड़का रोकता है गाड़ी और कहता है कि चलो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ? उसको भी डर लगता है। लड़की को क्या लगता है? क्या गलत लगता है कि उससे पैसे चोरी कर लेंगी? हाँ, हाँ, सेक्शुअल हरासमेंट की बात। तो मतलब कि लड़का उसके साथ गलत ना करे, वो सेक्सुअली हैरेस करे, राइट? ये सबसे पहले रिएक्शन ये है। सो क्या लड़कों को ये लगता है? Why do girls feel this? और अगर बॉयज की इंटेंशन क्लियर होगी तो वो वहां से ही क्यों पूछेंगे, उस सड़क से ही क्यों आपको पूछेंगे? तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है आपको अनसेफ फील कराने में। और चाहे जैसे लड़के भी कह रहे हैं हमें भी अनसेफ फील करता है, पर उनका अनसेफ फील करने की वजह का कारण कुछ और है। उनको लगता है कि हमारा कोई चोरी ना कोई कर ले, हमारे से पैसे ना ले ले या कुछ है। पर लड़कियों को फर्स्ट थॉट इज नॉट कि मेरे चोरी ना कर ले, मेरा वॉलेट या मेरा मोबाइल फोन ना छीने। फर्स्ट थॉट इज of being sexually harassed, and if you have felt it, आपके साथ कोई experience हुआ है, how do you feel? Hello everyone, thank you ma'am, thank you for providing this workshop. I'm not from India, I appreciate to be here, and as I noticed, India is much better than other countries in Asia in women's rights and fundamental rights. So I want to say one thing that I noticed in Chandigarh, because when I came here, I lived in Chandigarh. Actually, the thing is not harassment and outside of the Chandigarh when we go out. The thing is that we feel bad when we go. As a girl, I have experience when I go out of the college, out of this gate, not other sectors. I don't feel safe because everyone is following, everyone is passing comments. Why? Because I am a girl. It's so, I think it's a psychological harassment on me because I think that who I am. I'm not a human. When I look at myself, why? When I go outside, everyone is passing comments, especially the boys. Passing the comments and saying, hi, hello, where are you going? Especially when I am alone, when there's no friends with me, they are thinking that I came out because of some purpose, for searching boys, for saying, hi, I'm single, I want someone. But the thing I don't like in this city, I don't know about other cities. How do you feel? I feel
disgusting. I feel that I am a girl. I don't think too much about gender because I feel that I am a human. I am not, gender is nothing to me. But when it comes out and see the passing comments and lying, hey girl, where are you going? What are you doing? Especially at night. At night, where I don't feel safe going out alone. Seriously. So if in the day you all feel unsafe, तो रात को तो और भी. Yes, yes. It's a day or night. She said she feels disgusted. बुरा लगता है कि मैं सिर्फ लड़कों के पीछे थोड़ा घूमी. और why should लड़कों को क्यों ये assume कर लेना चाहिए कि अगर कोई लड़की चल रही है या घूम रही है तो वो मेरे साथ फ्रेंडशिप करने को तैयार होगी. आप शायद चाहते हैं और आपकी मर्जी है ना. Suppose a girl comes to you, it's reverse the question again, और वो कहती है कि मैंने तुमसे दोस्ती करनी है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो. शादी से नाम मुझे कर और भी सपने मैंने पीछे. एक महीना बीता भी ना, सारे पूछे कब होंगे बच्चे. ख्वाब हमारे फ्रेंड तुम्हारे. हमको जाना हो क्या हम जा सकते हैं? और क्यों हम ये सुनते रहते हैं कि अनसेफ है, नहीं जाना, ये नहीं करना. तो हमने GCG 42 में, GCG 11 में और आपके साथ हम थोड़ी सी ये चर्चा कर रहे हैं. So these are just going to be conversations. इसमें किसी के ऊपर पर्सनल चोट नहीं है. हम जनरल बात कर रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे कि लड़के खराब हैं. हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़कियां खराब हैं. हाँ, अगर बाहर जाती हैं, इसका कल्चर कैसे बनेगा उसके बारे में हम सोच रहे हैं. और GCG 42 और GCG 11 की छात्राओं ने इसके ऊपर कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं. 42 में गिद्दा डाला जिसमें नई बोलियां उन्होंने बनाई, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे. अगले साल हम यहाँ पे भी बनाएंगे और बोलियां और गिद्दा, भंगड़ा, डांस भी करेंगे. इस साल क्योंकि जैसे मैम ने कहा समय बहुत कम था, तो हम आप ये सेफ स्पेसेस कैसे क्रिएट होंगी और अनसेफ स्पेसेस क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं जो असमानता के ऊपर है, और उसके बाद एक वीडियो दिखाएंगे जो बच्चों ने 11 सेक्टर 11 की छात्राओं ने बनाया है, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे. एंड प्लीज टॉक ओपनली, फ्रीली. कोई आपका नाम कहीं नहीं आने वाला. और आज लेट्स जस्ट हैव दिस कॉन्वर्सेशन अराउंड सेफ एंड अनसेफ स्पेसेस. ओके, कह रहे हैं कि क्या लड़के भी अनसेफ फील करते हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर है उसके बारे में. Exactly, बहुत कुछ हो सकता है. So this is a space where we can talk about it. First of all, it's a global movement. One rising campaign, which we are talking about here. My only thing here, and I think we should highlight here, that India is a diverse nation, diverse country. People coming from northeast, for them wearing a short dress in North India or in anywhere, because they're comfortable. What ma'am is saying about this space, safe and unsafe place. So maybe ma'am in your lecture you can add this aspect so that बच्चे को थोड़ा यहाँ पे और अच्छे से समझ आ जाए. Because it's never about clothes. It's about thinking. According to say, thank you. Please. Are they equally unsafe for boys also, or are they unsafe only for girls? And transgender. अगर LGBTQ ये सब कहते हैं, मतलब ऑल इंक्लूसिव, कि सिर्फ लड़कियों को अनसेफ लगता है कि लड़कों को भी उन स्पेसेस में अनसेफ लगता है, और लड़कियों को अनसेफ लगता है तो उनको क्यों लगता है अनसेफ, किसकी वजह से लगता है? लड़कों की वजह से कि उनके साथ कुछ, क्योंकि एज मैम सेड कि हम किसी एक पर्टिकुलर, आप और मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहे, हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे समाज में आमतौर पर फैला हुआ है. तो लड़की अनसेफ फील करती है, अनसेफ फील करती है. आप में से कोई बताओगे इस चीज को, क्या कारण क्या है अनसेफ फील करने का? बॉयज, आदमी, चाहे वो किसी उम्र के हो, तो
ये चीज मैं चाहूंगी आप सब अपने मन में रख के इस चर्चा के भागीदार बने कि अगर लड़कियों और मेंटल ट्रेनिंग, नॉट टू हैरास गर्ल्स, उसी तरीके से लड़कियों को भी रिसोशलाइज, ये नहीं वो कोई अलग जेंडर नहीं है आपसे, दे आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एज यू आर। पर कितने एनजीओ है जिसमें लड़कियों को ये चीजें सिखाई जाती है? क्या चीजें? यही चीजें बताई जाती है जो लड़कों को बताई जा रही है। कैसे? जैसे लड़कों को समझाया जा रहा है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स है, तुम अपने मेंटल हेल्थ पे काम करो, अपनी थिंकिंग पे काम करो। ऐसे कितने एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लड़कियों को समझाया जाता है? सब एनजीओ में यही है कि मानसिकता बदलो, आप समान एक For समान हो। girls. For girls, yes, ज्यादा But एनजीओ शुरू- महिलाओं के साथ ही काम कर रहे हैं, But पुरुषों के शुरू साथ से तो अब उन्हें काम करना चाहिए। जितनी भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है उसमें लड़कियों के बाद लड़कियों को तो कुछ भी नहीं समझाया गया, सारा लड़कों को समझाया गया। लड़के को भी ये कहना चाह रहे हैं कि वो दोनों जेंडर्स ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਵੀ ਦ ਟਾਕਸ ਔਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਔਰ ਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। तो वो कर रहे हो भी यही कह रहे हैं कि हौली हौली तो हम जो नवे सैमीनार से नवी टॉक देखो इंटरनेशनल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗਰਲਸ ਆਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਉਹ दोनों चीजें में इकट्ठे लेके चलते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और वैसे भी जैसे जो चीज आप कह रहे हो ना, ये डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है कि क्योंकि हम लड़कियों की बात करें तो लड़की फटाफट अपने आप को डिफेंसिव पर आ जाते हैं कि हम तो ऐसे करते ही नहीं, हमारे साथ भी होता है। तो हम वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए अभी तैयार कि हाँ लड़के जो है वो मतलब इट्स नॉट अबाउट यू प्रेजेंट हियर, इट इज अबाउट जनरल सोसाइटी। अगर आप नेगेटिव से क्राइम पेट्रोल जैसा एक सीरियल भी आप देखते हो तो उसमें आप देखोगे ज्यादातर लड़कियों के साथ ही जाती होती है, हिंसा होती है, रेप विक्टिम्स है, फीमेल फिटिसाइड होता है, लड़की को कोई मारता है अपनी चौकी में नहीं मारता है। इक्वालिटी वाला समानता वाला समाज है, ना कि हम अपने आप को विक्टिम का रूप दे के अब यहाँ पे रहते हैं कि हमारे साथ भी होता है, आपके साथ होता है, बहुत गलत होता है। ये तो कोई नहीं कहेगा कि ठीक होता है अगर लड़के के साथ, हमने पहले ही लेकिन आप ये देखोगे जब ज्यादा होता है अपने घर में भी देखोगे, आपकी मम्मी कितना काम करती है, आपकी बहन है वो चाय बनाएगी ये करेगी, और मम्मी अगर जॉब करती है तो उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बिल भी भरेगी, वो बैंक में आपकी फीस भी दे के आएगी, वो सब्जी भी खरीदेगी, खाना भी बनाएगी, रात को थकी हुई आएगी तो तुम्हारे लिए भी सब काम करेगी, बिस्तर भी ठीक करेगी, घर साफ करके जाएगी। उसमें आपका पापा मोस्टली, मैं नहीं कहती कि इंडिविजुअल केसेस आई एम नॉट कोटिंग, बट मोस्ट ऑफ इट द फादर्स आर टायर्ड व्हेन दे कम बैक फ्रॉम होम, दे एक्सपेक्ट कि इवन वुमन हु इज वर्किंग अहेड। अगर मैम वो चीज ना हो तो लड़का कैसे बच सकता है उन सब चीजों से? क्या चीज ना हो? जैसे मैम सीसीटीवी आ गया, प्रूफ आ गया कि हाँ चलो लड़की की गलती नहीं थी, अगर ये सब चीजें ना हो और लड़की फॉल्स एलिगेशन लगाए तो लड़का कैसे बच सकता है इन सब चीजों से? वही सवाल वापस आता है कि अगर लड़कियां के ऊपर जब एलिगेशन लड़की कोई के साथ ऐसे हैरेसमेंट होती है, आपने एक केस बताया, 2 केसेस बताए, हम ये नहीं कह रहे कि लड़कों के साथ हैरेसमेंट नहीं होती है, पर ये आप मानने को तैयार हो कि ज्यादा हैरेसमेंट लड़कों से होती है, ये लड़कियों के ऊपर होती है कि ज्यादा हैरेसमेंट लड़कों पर होती है? जो आपने Ma'am, nowadays even boys are not safe also because ma'am, girls are judgmental and overthinker. If we are passing through them, they think we are coming for them only. So ma'am, they overthink a lot. Ma'am, they judge us and overthink a lot. If we are doing our work, our intentions are pure, and we are passing through them, so they think we are coming for them only. And we have our work to do. So why we are coming for them? Why they think this type of things? Because cases are a lot, but they need to be understand also that now we are not coming for their only. Not all boys are the same. एक सवाल, आप में से कोई लड़का ये एडमिट करने को तैयार है कि उसने किसी लड़की को तंग किया है, हैरेस किया है, कमेंट पास Me ma'am. किया है? तो मैंने नहीं किया। नहीं किया। कोई ऐसे जो एडमिट करे कि मैंने किया और किया तो क्यों किया? मतलब लड़की को कैसे पता चलेगी आपकी मैम ऑब्वियस है, मेरा जेंडर मेल है तो मेरे को फीमेल ही अट्रैक्ट करेगी, तो मतलब
मतलब मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो उसकी थोड़ी तारीफ करूंगा तो कुछ अच्छे वे में ही करूंगा। मैं ऐसे नहीं हूँ कि उसके साथ बहुत क्रीपी हो जाऊंगा बहुत सा, या बहुत उसके ऊपर ही चढ़ दूंगा। अगर पसंद है तो बोल दूंगा डायरेक्ट में। आपका कहने का मतलब कि आप कोई भी लड़की के पास जिसको आपको लगता है दैट शी इज अट्रैक्टिव, सुंदर लगी है, तो मैं उसको जाके कह दूं दैट आई थिंक यू आर ब्यूटीफुल और आई थिंक यू आर लुकिंग गुड, उसको आपकी समझ में उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? यू डोंट नो द गर्ल, वो आप उसको जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर है वो, यू डोंट नो मी, राइट? चलो हमारा तो एज गैप बहुत है, तो मैं शायद कह दूंगी अगर आप कहोगे आंटिया तो मैं सोचूंगी चलो बेटा है कह दिया, बट सपोज आई वाज अ यंग गर्ल, यू डोंट नो मी एंड यू थिंक आई एम वेल ड्रेस्ड और व्हाटएवर, इन कमेंट से आप जिसको नहीं जानते उसके साथ ऐसी फ्लर्टिंग होती है जिसको आप जानते। मैम आई विल नेवर अप्रोच यू बिकॉज मैम आपको मैं जानते नहीं, पहली बात मेरे को आपकी क्वालिटीज नहीं पता, आपकी अच्छाइयाँ नहीं पता, तो मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ? आप अपनी बात को थोड़ा रिफाइन करोगे। आप कह रहे हो कि जिसके साथ लड़के क्या समझते हैं कि कमेंट पास करना हिंसा है लड़कियों के ऊपर? कमेंट्स आजकल क्या आप नहीं जानते हो, जिन लड़कियों को आप नहीं जानते हो, आपको पता है ये कॉलेज से निकल रही है, कॉलेज की लड़कियां कौन सा गाने का नहीं जानते, आप उनके ऊपर कुछ कमेंट कर देते हो या जब चलाना होगा ना, उनको नहीं जानते हो। आपको लगता है लड़कों को कि ये हैरेसमेंट है, वो लड़कियां घूम रही हैं, आपने उनको कह दिया हाय हाउ आर यू लुकिंग गुड, यू डोंट नो दैट। थोड़ा सा रिएक्ट करो, एक्चुअली वो इतने डरपोक होते हैं, हट जाते हैं क्योंकि उनको भी उस टाइम से साइड पे हेल्पलाइन जो वो आपके डर को आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, यू नो व्हाट हैपेंस कि वो आप पैरालाइज हो जाते हो, आप कुछ समझ ही नहीं आता। तभी हम कह रहे हैं कि हम बात करेंगे स्ट्रेटजी क्या करना है। At that time he was offering me money on his phone. See, the thing is, her situation is doubly difficult because he immediately saw कि ये लोकल लड़की नहीं है, ये कहीं बाहर की है, उसको भाषा भी पूरी तरह नहीं आती। आप सोचो, आप अकेले जगह एक दूसरे देश में गए हो जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, आपको भाषा भी नहीं पता है, और वो इस तरह से बिहेव करे कोई आपके साथ। So, lot of girls have said that The driver was also with him. Because I saw that he's watching me on the reflection. And a lot of times, you know, if like you said, sometimes the girl can raise her voice. A lot of times, because like she said कि वो conductor, driver दोनों, वो कई बार आपके ऊपर वापस वो एलिगेशन फेंक देते हैं कि ये देखो ये लड़की है पीछे हमारे, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, उसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग पड़ते हैं। सो समटाइम्स यू हैव टू बी रियली केयरफुल। इतना कुछ सोचना सिर्फ एक बस जर्नी के लिए, वही हम बात करते हैं कि ये अनसेफ क्यों ऐसा है और ये नहीं होना चाहिए। हम वंस अ मंथ मिल सकते हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हैं और स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। थोड़े से जो आपके मुद्दे होंगे, हमने कई कॉलेजेस में ये स्टार्ट किया है, और आप कुछ भी चाहते हैं, वी आर हैप्पी टू पार्टनर विद यू एंड वी हैव अ ग्रुप ऑफ वेरी वेरी गुड एक्टिव कमिटेड टीचर्स एंड वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग। सो इन द एंड हमारा एक नारा है 1 million राइजिंग, तो उसमें एक ऐसे करके ऐसे बोलेंगे, So we will say HGGS College for 1 million rising. Okay, एक nice photograph also with this हाँ together. इंसिडेंट शेयर किया, So, आपने कुछ किया। अगर आपने कभी ऐसा कोई हैरेसमेंट का सिचुएशन फेस किया, जैसे आप लड़का कह रहे हैं, आपने क्या कहा, आपने क्या किया? क्या लड़कियां जब फेस करती हैं, आप क्या कहते हो, क्या करते हो? That's the question. So, any response? माइक साई मैम। एक बार मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, मैं अपनी इंसिडेंट शेयर करना चाहती। लोकल बस नहीं था और वो CTU बस था। तो जब मैं टिकट लेने गई, कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा, मतलब मैक्स किया थोड़ा सा ब्रेक, और उन्होंने कहा द फर्स्ट वाला सीट मुझे दे दिया। उसके बाद मैं खुशी खुशी गई कि मुझे फर्स्ट सीट मिल रहा है, क्योंकि वो अच्छा रहता है
तो मैं वहाँ पर बैठी, तो उन्होंने अपनी सीट में जो कंडक्टर का होता है वहाँ नहीं बैठा, उन्होंने आकर मेरे पास बैठा और ऐसे इधर टच करके बैठा। मैं डर गई थी बहुत ज्यादा, शाम की टाइम था, तो उस टाइम अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे। कैसे इतना ट्रॉमा है कि अभी याद करते हुए कैसा फील हो रहा है? How many of us have felt that pain? और ये हो रहा है। I think now we should stand for her and we'll always stand for her. Thank you for sharing. Thank you for sharing. आपने कुछ किया? Did you do something? You couldn't. See, this is this helplessness जो भी लड़की कह रही थी. You just feel helpless and you feel horrible. क्योंकि जितना आप इधर इधर जाओगे ना, वो कंडक्टर और उधर उधर जाएगा, फिर उसकी कोनी भी लगनी शुरू हो जाएगी, फिर उसकी बाह भी बहुत बोल्ड हो जाएगी। So you see, you just cannot escape the situation and look how it stays with the girl. And moreover, ma'am, many times we don't get socialization of that time कि हमने respond करना है, हमने कहना है। मतलब अपनी भी मैं एग्जाम्पल भी माय मम्मा यूज्ड टू टेल मी कुछ नहीं कहना, चुपचाप निकल जाना। द कल्चर ऑफ साइलेंस which we are getting from the socialization process कि कुछ नहीं कहना, मतलब we are not trained to respond कि ऐसी situation हो जाए तो क्या करना है। Also we are scared. डर है ना, डर भी और ट्रेनिंग तो है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। And imagine, just look at one learning, one thing that you will do in future, जो आज से आपने कुछ चर्चा, अगर आपने कुछ लगा कि कुछ हमें सीखा है, one takeaway. What will I do? A strong for which you can pledge. One thing. What will I do? पक्का? तो ये तो हो गया कि अगर मेरा एक पुरुष साथी कुछ और छेड़ रहा है लड़की को, उसको मना कर सकते, गट्स भी चाहिए। करूंगा सकते हैं, नहीं चाहिए, करूंगा इंसिडेंट होगा, चाहिए नहीं, तुम क्या करोगे? मैं करूंगा, अपनी बात करूंगा, बच के भी रहूंगा, मैं जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं समझती, कमजोर नहीं समझती। अगर कोई कमेंट कर रहा है मैं इग्नोर नहीं करूंगी, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। मैं अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं समझती कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकती, या मेरे को कोई गलत समझ लेगा या मेरे पे गलत कमेंट करेगा कि लड़की ही गलत होगी। मैं अगर सही हूँ तो मैं सही ही हूँ और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अगर से कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियां ऐसा कर रही हमारे साथ, तो अगर मेरा कोई फ्रेंड जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं उसकी पूरी सपोर्ट करूंगी। You stand up and speak up. Why are you disturbing me? Why are you taking my seat? Thank you, ma'am. And I learned and I knew that as a human being, as a woman, we should not be silent. It is time to rise up sound, and we should know that we are human. We are also living in a society. And if someone is coming to us, and we should be silent. I will not be silent. Yeah. Say that. We should rise. I will not be silent. Together, and unity is the best thing. And we women should be together, and we should against violence and harassment, anything negative happen in the society, offering the society and the people to women that you should not do this, you should do this, will not do, and we should not be silent. This is. It's a girl or a boy. Ma'am, like अगर किसी को लगता है that they are being disturbed by somebody, like अगर girls कर रही हैं boys कर रही हैं girls को, I'll fully support them and I'll say them to be strong fully. Right?